सुप्रभातम गाइस, पुनः त्वां स्वागतम करोमि। एक बार पुनः आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 9, उपकार हतस्तु कर्तव्यः मीन्स obligation slays duty, or we call it should be killed by obligation. The major characters of the given Bonnet plays are Sakar, that is the villain, Charudat, that is the Nayak, main actor we call it, main hero, and Sarvilakah, the friends of Charudat, the well-wisher of Charudat, we can say that. And when Shakar was produced in front of Charudat, in the previous video, we learnt that Sakar, being a criminal, having a fearful mind, he falls at the feet of Charudatta and requests him to spare his life. He also assured Charudat that he will not do such a kind of crime again in the future. But Sarvilak, as well as the people of the kingdom, they do not want to spare the life of this sinner. They want to kill Sakar. And therefore Sarvilakah again and again asks Charudat, can you tell us what type of punishment should be given this criminal, or we call him sinner. And at that time, the noble Charudat, the kind Charudat, we call it good Charudat, he said that Satrukrut apradah sarnam upetya padayo patitah sastrena nahantavyah. He said that can an enemy who has committed an offense fallen on your feet, having sought protection, saranam upetyah, having sought protection, sought the past participle of seek, seek यानी ढूंढना, आपका शरण ढूंढता है, having sought protection, sastrena nahantavyah, should not be killed with a weapon. Now there are two types of weapon, astra, shastra. शस्त्र जिसको हम हाथ में पकड़कर शत्रु पर वार करते हैं, और अस्त्र जिसको हम फेंक कर शत्रु पर वार करते हैं। जैसे पहले के ज़माने के अंदर बाण, अलग अलग प्रकार के बाण आते थे जो मंत्र द्वारा उसको अपने शत्रु पर फेंकते थे। वर्तमान समय में अगर हम बात करेंगे अणु बम, एटम बम, जिसको हम फेंकते हैं, मिसाइल फेंकते हैं। तो दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द अस्त्र एंड शस्त्र. So here Charudat said that such a type of enemy should not be killed with a weapon. Now Sarvilak said that let me proceed. We are here now. Last paragraph, very very important for the exam point of view. Sarvilak said, एवं तरहि स्वभिहि खाद्यताम. एवं, all right. Write down the meaning. Page number 35. Have a pen in your hand. Write down the words meaning in your textbook. Sarvilakah vadati. Evam, that means all right. Tarhi, then, THEN. Swabhihi khadyatam. Swabhihi, dogs. Khadyatam, be eaten. Then let him be eaten by dogs.
ठीक है, हम उसको वेपन से नहीं मारते, उसको कुत्ते को खिला देते, ऐसा करते। आई रिपीट द ट्रांसलेशन अगेन। ऑल राइट, देन लेट हिम बी ईटन बाय डॉग्स। चारुदत्त, नहीं, not indeed. It means we can also say like this one, no. And now the noble Charudat, he spoke these words and this is the title of our chapter. देखो टाइटल ऐसा दिया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। टाइटल ऐसा है कि उपकार से मार डालो। दिस इज द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, दिस चैप्टर, ऑब्लिगेशन स्लेश ड्यूटी, और वी कैन से दैट शुड बी किल्ड बाय ऑब्लिगेशन। तो हमको पता चलता है कि चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं उपकार की बात है, काइंडनेस की बात है। तो वेन एवर यू गिव द टाइटल टू एनी पर्टिकुलर पैसेज, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, गिव अ वेरी कैची शॉर्ट टाइटल which says, simply seeing the title you can imagine what is given in the content. And here Charudat said that upkara hatastu kartavyah means he should be killed by obligation. He should be killed by obligation. उसको उपकार से मार डालो। सर्विलकः, now hearing such a type of sentence from the mouth of Charudatah, Sarvilak becomes surprised, and therefore he said that, "Oh, Ascharyam! Oh, what a surprise! Kim karomi? What should I do? Vadat Aryah. Let the noble one tell." Let the noble vadat tav Aryah. Aryah means noble. Kim karomi? Aham kim karogi? Just to see here. Karomi, this verb it is used. This is present tense. परस्मै पद, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, मी, सफिक्स मी इट इज यूज्ड। अगर मुझे इस रूप का परिचय देना है तो मैं यही कहूँगा, कर धातु, वर्तमान काल, परस्मै पद, प्रथम पुरुष, एक वचन। क्लियर? और यहाँ मी है, जानबूझकर जो प्रोनाउन अहम है, इट इज नॉट गिवन, बट वी कैन अंडरस्टैंड। हियर द कंप्लीट सेंटेंस विल बी अहम किम करोमि, व्हाट शुड आई डू। वद त्व आर्यः, लेट द नोबल वन टेल। Ultimately Charudat said that tat मुच्यताम, तन्मुच्यताम वो शब्द है, but actually when we divide this word into two words, the word will be tat muच्यताम। tat, so let him be released, so tat means so, मुच्यताम let him be released, him means who? Sakara, criminal, we call it villain, let him be released, Sarvilak। Mukto bhavatu, Sarvilak also said that let him be free, mukto be free, and bhavatu means let, यहाँ him means sakar, let him be free। Ultimately sakarah, आश्चर्यम, wonderful, wonderful। Sakar also becomes surprised. He might have not thought that his life will be spared,
because he knew what type of sins he had done when the old king was ruling in the kingdom on the innocent people. And when such a type of judgment which is given by Charudat, he himself also becomes surprised, and he said that Pratyu Jivito Asmi. Sandhi is there. Asmi. Pratyu Jivitah plus Asmi. So he said that I have been restored to life. મને જીવાડી દેવામાં આવ્યો. My life it is spared. I have been restored to life. Restore, store again. Read again. Whenever re prefix it is used before any words, we use it again. Replace, place again we call it. यानी कि जो वस्तु है जहाँ थी वहाँ वापस रख दो. रीड, वापस पढ़ो. Similarly, I have been restored to life, and in bracket it is given इति पुरुषैः सह निष्क्रान्तः. निष्क्रान्तः exist. पुरुषैः guards. सह with, exist with the guards. अब देखो सकार की एंट्री से हमारा लेसन स्टार्ट होता है और सकार जब चला जाता है गार्ड के साथ वहाँ हमारा लेसन का एंड होता है. एंड दिस चैप्टर, that means the particular piece of this chapter, it is taken from मृच्छकटिकम 10th एक्ट. मृच्छकटिकम जो पुस्तक है उसका जो 10वां अंक है उसमें से इस चैप्टर का अंश लिया गया है. एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द मृच्छकटिकम? शूद्रक, द फेमस ऑथर ऑफ संस्कृत literature. Guys, here is the end of the chapter. Let's we proceed towards the exercise. And the exercise, first one, select the proper option. Option number 1, पुरुषैः अधिष्ठितः शकारः कीदृशः आसीत्. यानी कि गार्ड्स के घिरा हुआ सकार कैसा था? तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इट इज पश्चात बाहुबद्ध. उसका हाथ पीछे से बंधा हुआ. नंबर 2, किम अहम यद ब्रवीमि तत् क्रियते. वुड व्हाट आई से बी डन. Who spoke this sentence? इति वचनम कस्य. आ वाक्य, आ वचन કોનું છે? Who is the speaker of this sentence? नगर जनस्य, क्या नगर के लोग बोलते हैं? सर्विलक बोलता है, सकार बोलता है या चारुदत्त बोलता है? Twice this sentence it is given in the chapter. और ये वाक्य चारुदत्त बोलता है, 2 बार बोलता है. ठीक है. नंबर 3, एवं तर्हि स्वभिः खाद्यताम्. एतत् वाक्यम कह वदति. देखो क्वेश्चन इसी तरह से भी एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन इसी तरह से भी एग्जाम में आ सकता है. एतत् वाक्यम, एतद हम ऐसा भी बोल सकते. एतत् वाक्यम कह वदति. आ वाक्य कोण बोले છે? शूद्रक बोले છે, चारुदत्त बोले છે, सर्विलक बोले છે કે સકાર બોલે છે? અહીંયા શૂદ્રક કોણ છે? ઓથર ઓફ ધ ચેપ્ટર. તો ધીસ સેન્ટેન્સ હેઝ બીન સ્પોકન બાય सर्विलक. ક્લિયર? શું એને કૂતરાઓને ખવડાવી દેવામાં આવે?
The sentence has been spoken by Sarvilaka. Next one, Shakarah. આશ્ચર્યમ ડેશ 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 અસ્મિ. सकारનું છેલ્લું વાક્ય, लास्ट सेंटेंस ऑफ द चैप्टर, इसमें सकार बोलते हैं प्रत्युजीवितः. पेज नंबर 37, रिमेनिंग 8. कह डैश 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 संदेह. दिस इज द करेक्ट अव्यय. ये 4 ऑप्शन है वह अव्यय है. What is the doubt here? And here for this one atra is the correct answer. Next one, सह डैश 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 सह निर्गच्छति. वह उनके साथ निकल जाता है. किसके साथ निकल जाता है? लास्ट में पुरुषैः. ये तृतीया बहुवचन है. हमने आगे देखे थे विभक्ति के प्रकार. रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान, रामाय रामश, रामाभ्याम रामैः, बाय राम्स જેને આપણે કહીએ છીએ. In your textbook it is given like this one, जनेन जनाभ्याम जनैः. तो ये तृतीया बहुवचन है. ठीक है, तो जिसके साथ जाना है वहाँ हम तृतीया बहुवचन की यानी कि तृतीया विभक्ति लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पुरुष है ही एग्जिस्ट विद द गार्ड्स. हियर पुरुष है ही मीन्स गार्ड्स. नंबर 7, सर्विलकः डैश 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 प्रतिपश्यति. सर्विलक कोनी सामे જોવે છે? ચારુદત્તમ. દ્વિતીયા એક વચન, રામમ જનમ. બરાબર, દ્વિતીયા એક વચન વિભક્તિનો ઉપયોગ થયો છે. જો વિભક્તિનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે અને એનો પ્રત્યય શું છે? ટુ. દ્વિતીયા द प्रत्यय ऑफ द्वितीय विभक्ति इट इज टू, जेनो मतलब थाय छे टू. सर्विलक चारुदत्त तरफ जुए छे. लास्ट वन, यदि एवं डैश 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 स्वभिः खाद्यताम. एंड द करेक्ट आंसर इज तर्हि. यदि एवं तरही स्वभिः खाद्यताम. अगर ऐसा है तो उसको कुत्ते को खिला दे. क्लियर? ओके, डू इट इन द टेक्स्ट बुक. नो नीड टू राइट दिस एक्सरसाइज इन द क्लास वर्क कॉपी. सिंपली वी डू दिस एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित पदानां समास प्रकारम लिखत. अगर आपको विभक्ति के प्रत्यय बराबर याद है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर ऑफ समास यानी कि तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में हम विभक्ति का उपयोग करते हैं. और विभक्ति कौन सी है? तृतीया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी. जिसका प्रत्यय क्या है? टू, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन. ठीक है, तो यहाँ शब्द है शरणागतस्य, यानी शरणे आवेलाने. ने शब्द आव्यो यानी कि टू. तो टू क्या है? द्वितीया तत्पुरुष. तत्पुरुष लिखना है आपको, तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष. ओके, नेक्स्ट, आहा अपनीयताम अयम
चारुदत्त पश्चात अंडरलाइन शब्द की का समास कौन सा है? शब्दाओ थाय छे चारुदत्तस्य पश्चाम पार्श्वम ऐसा शब्द है। चारुदत्तस्य पश्चात यानी कि चारुदत्तनी पासे आवेला ने चारुदत्तनी नी आयो यानी ऑफ या एपोस्ट्रोफिक एस तो षष्ठी विभक्ति है। ऑफ जेने कहीए छे षष्ठी विभक्तिनो प्रत्यय कयो छे? ऑफ। ओके तो राइट डाउन षष्ठी सॉरी वी विल राइट इन हिंदी षष्ठी तत्पुरुष। ओके नेक्स्ट वन उपकार हतः कर्तव्य यानी कि उपकारेण हतः उपकार थी मारी नाखो थी बाय या विथ दिस प्रत्यय वी यूज इन तृतीया तत्पुरुष। राइट डाउन लास्ट वन तृतीया तत्पुरुष। ओके तृतीया तत्पुरुष। Question number 3 is given in the homework. You have to write in a classwork copy along with the translation of this chapter. Number 4 शब्द रूपे अहींया आपणे विभक्तिनो उपयोग करवानो छे। तो जो पहली छे फर्स्ट वन षष्ठी विभक्ति छे जनस्य जनयोः जनानाम तो अहींया लखीशुं पापस्य पापयोः। ओके पापा नाम। नंबर नेक्स्ट पादयोः यानी वापस ये षष्ठी विभक्ति आई तो हम कहेंगे यहाँ के जैसा है पादस्य पादस्य पादयोः અને પછી શું થશે पादानाम। ओके पादानाम गुजराती में नहीं इसका मीनिंग निकालना। पादह मीन्स लेग फिट जिसको हम बोलते हैं गुजराती में इसका मीनिंग अलग हो जाता है पादह का मतलब। तो डोंट टेक द गुजराती मीनिंग। नंबर 3 लास्ट वर्ड दिया है आगे की 2 आपको करना है। तो यहाँ जो है वह हम कहेंगे पौरः प्रथमा विभक्ति है पौरः जनः जनौ जनाः। इसी तरह पौरः पौरो पौरो जनः जनौ। इसी तरह यहाँ पौरो पौराः रामः रामौ रामाः। नंबर 4 द्वितीय विभक्ति है आचार्य चारुदत्तम म आया। ओके तो यहाँ आचार्य आर्य चारु दत्तो અને लास्ट में आर्य चारु दत्तान न आर्य चारुदत्तम आर्य चारुदत्तो आर्य चारुदत्तानाम। नेक्स्ट वन अगेन प्रथमा विभक्ति जनः जनौ जनाः। इसी तरह मुक्तः मुक्तौ मुक्ताः मुक्तौ मुक्तौ कानून बे मात्र अने छेल्ले विसर्ग
मुक्ताः. Okay, again write down this question's answer in English. And here it's the end of the chapter. Questions answer and translation is given in the homework. Thank you guys.